am Avni Kumari Sharma hosting this special talk series कुछ पल angels के साथ with my friend Miss Vartika Khandelwal. This series of talk is scheduled in 2 days, today and tomorrow, with three different sessions. Through this, we are going to interact with three different people who expertise in three different fields: education, healthcare, and entrepreneurship. And now, in this session, we are going to interact with an educator, Dr. Kuldeep Singh. Before engaging in the talk, my friend Vartika will brief an introduction about our subject matter expert, Dr. Kuldeep Singh. Good morning to all dignitaries on and off the dais and my dear friends. As Avni mentioned, we are here with our special guest, Dr. Kuldeep Singh, for the first session of much awaited talk series, Kuch Pal Angels Ke Saath. Before divining into the session, let me introduce Mr. Singh to you. Even though many of you may be familiar with him already as he is a local boy. Dr. Kuldeep Singh, an academic promoter and a skilled professional with MA, PhD in Geography, Bachelor in Journalism and Mass Communication, and over a 2.5 experience in higher and school level education. Born in Khirda, Bujur near Meva, and now settled in Jaipur. He is engaged in to promote quality education in rural Rajasthan. He is a PhD holder in Human Resource Development and Employment Opportunity Special Study in Dausa district from University of Rajasthan, Jaipur. During his university days, he was actively participating in students' politics and hold many key positions in NSUI and Congress Seva Dal. Being from a prominent political family, this visionary devoted his life to improve rural Rajasthan scenario and heading a handful of educational institutions like PG College Meva, Jagrati Women's College Meva, SC Post Senior Secondary Public School Meva, St. John's Secondary Public School Karoli, and many more. For the past 21 years, he is working on the concept of Shiksha Panchayat and various educational programs in the rural areas, contributing for removing the social evils such as illiteracy, dowry system, child marriage, drug abuse, etc. Working with social reform with such special emphasis on girls' education, women empowerment, skill-based vocational and technical education for his valuable contribution to the society with regarding education. So far, he awarded by many NGOs and organizations. Today, he is here with us for educators, view of development, education, the reforming factor for individuals to nation. Thank you, Vartika, for your brief introduction. Now I would like to invite our head girl for her welcome warm and a pleasant morning to our respected principal ma'am, director sir, chairman sir, administrator ma'am, our esteemed chief guest Shri Kuldeep Singh ji, respected teachers and my dear angels. सबसे पहले मैं हमारे जो एंकर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे चीफ गेस्ट का इतना अच्छा और सुंदर परिचय दिया। आज का दिन हम सबके लिए एक स्पेशल डे है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर कुलदीप सिंह जी कुछ पल एंजल्स के साथ साझा करने जा रहे हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सल ग्रुप। सर, आपका हमारे बीच होना हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है क्योंकि जब एजुकेशन के फील्ड से जुड़े अनुभवी और विजन रखने वाले लोग स्टूडेंट्स के साथ कुछ पल बिताते हैं तो वो पल सिर्फ यादें नहीं, डायरेक्शन बन जाती हैं। On behalf of Holy Angels family, I extend a very warm welcome you. We are truly honored to have you with us today. वेलकम के रूप में हम अपनी तरफ से अपनी respected dignitaries and our chief guest श्री कुलदीप सिंह जी को एक छोटा सा टोकन ऑफ रेस्पेक्ट प्रेजेंट करने चाहेंगे। A flowerable respect जो हमारी तरफ से सम्मान और स्वागत का प्रतीक है। अगर आप अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में जानते हो या जान जाते हो तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। इट इज फैक्ट आज के इस कुछ पल एंजल्स के साथ प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करने के लिए होली एंजल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स मैम, आप सबका मैं अभिनंदन करूंगा कि अवसर आप लोगों ने मुझे दिया।
मैं अपनी जीवन के अनुभव और अध्ययन को आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और मैं क्या समझ पाया हूं इस जीवन के अध्ययन और अनुभव के बाद। आप लोग जो यहाँ उपस्थित है, आई थिंक जैसा मुझे रॉबिन सर ने बताया 9th से लेके और 12th तक के बच्चे, ठीक है। हम अपने जीवन को कैसे समझ पाते हैं, मैं सिर्फ आपसे जो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, क्लास में सर आपको पढ़ाते, थोड़ा सा आपको उनसे अलग ले जाके बात करना चाहूँगा। बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुने। ये जो जीवन है, ज़्यादातर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, और साइंस का विद्यार्थी इस बात को जानता है, मानता भी है कि जो सिस्टम जो भी चल रहा है ये एनर्जी पे बेस्ड है। आपका मानव जीवन भी एनर्जी पे बेस्ड है। पर क्या हमें कहीं ये पढ़ाया जाता है, क्या हमें ये सिखाया जाता है, और क्या हम जानते हैं कि वो जीवन को संचालित करने वाली एनर्जी कौन कौन सी हैं और उनकी भागीदारी कितनी है? अगर हम इनको जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो शायद हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने के साथ हम अपना श्रेष्ठ दे सकते हैं। मानव जीवन आपका 4 एनर्जीज पे बेस्ड है। जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो आपके जीवन को संचालित करने वाली है, वो एनर्जी है आपकी साइको एनर्जी, जिसको हम हिंदी में मनोविज्ञान ऊर्जा बोलते हैं। ये आपके जीवन का 50 से 60% होता है। आज जो कुछ भी हम या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, ये मेरा मनोविज्ञान एनर्जी है, जो मुझे एक लंबे अंतराल के बाद अध्ययन, देखने से, पढ़ने से और सुनने से जो प्राप्त हुआ है, जो मेरा मनोविज्ञान बना है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। आप लोग भी अपने बचपन से, और जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जो आपका मनोविज्ञान बनेगा वही आप करेंगे। दूसरी जो आपकी एनर्जी है, वो आपका है ब्रेन एनर्जी, जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है। अब साइंस में अपन जाएंगे तो फिर ब्रेन हमारे लेफ्ट राइट 2 ब्रेन होते हैं, उतना अपन को नहीं जाना है। इसका जो आपके जीवन में जो हिस्सा है, वो 10 to 15% होता है, 10 से 15%। तीसरी एनर्जी जो है आपकी, वो है आपकी फिजिकल एनर्जी, आपकी शरीर ऊर्जा, सेम 10 to 15%। फोर्थ एनर्जी आपकी है, जिसको हम बोलते हैं इमोशन, भाव ऊर्जा, 5 to 10%। और एक एनर्जी और है लास्ट, जिसे हम बोलते हैं प्राण ऊर्जा। उसका आपके इस जीवन जीने का, जन्म लेने से और आपके यहाँ से जाने तक का जो उसका योगदान मात्र 5% है। लेकिन वो है तो आप हो। अगर वो प्राण ऊर्जा आपके अंदर, मेरे अंदर है, तो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मैं ये हूं। अगर ये निकल जाती है तो चीज खत्म है, जीवन खत्म है। अब जो मैंने आपको रेशो बताया, ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च किया हुआ है, उसके बाद ये चीजें निकल के आई हैं। आप इनको कैलकुलेट करेंगे 50 से 60%, 10 से 15%, तो ये जाके कंप्लीट 100 होती है। विद्यार्थी जीवन जो हमारा होता है, जब हम क्लास 9 से लेके और 12th तक हम पढ़ते हैं, ये आपके निर्माण का एक तरीके से फाउंडेशन है। तो एज ग्रुप है आपका 15 से लेके और 25 और 30 तक। ये जो एनर्जीज हैं आपकी, ये सबसे श्रेष्ठ ऊंचे पायदान पर होती है। जो युवा इन एनर्जीज को पहचान लेता है, जो युवा इन एनर्जीज पे काम करना शुरू कर देता है,
या एक तरीके से हम कहेंगे वो इन पर नियंत्रण पा लेता है, वो अपने जीवन में श्रेष्ठ दिशा की तरफ कामयाब होने की पथ पर चल देता है। ये चीजें शायद हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे अध्यापन में नहीं होती है। मैं कहीं पढ़ रहा था विवेकानंद को, जो मैंने अभी आपको कोट कहा था कि आपके अंदर वो सारी शक्तियां समाहित हैं, अगर आप उन्हें पहचान लेते हो, आप उन्हें जान लेते हो, तो आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप प्राप्त करना चाहते हो। और मुझे उसके बाद एक आर्टिकल पढ़ने को मिला, कोई साइंटिस्ट थे अमेरिका के यूनिवर्सिटी के, और जो मैंने अभी आपको जो चर्चाएं की है, ये रिसर्च वहाँ पे चल रही है। उस रिसर्च का प्राइमरी जो एक फेज था, उसमें जो चीजें निकल के आई, वो मैंने वो अध्ययन हो किया, वो मैंने आज आप सब लोगों के साथ ये यहाँ पे साझा किया है। स्कूल एजुकेशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपका मनोविज्ञान, आपकी शारीरिक क्षमताएं, आपकी भावनात्मक क्षमताएं, इनका एक सिस्टमेटिक विकास हो। और आप जब यंगस्टर्स के रूप में जाए तो आप एक कंप्लीट सिटीजन बन के आप जाएं, और जब आप कंप्लीट सिटीजन बनते हैं तब आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और वो निर्मित व्यक्तित्व राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है। तो व्यक्ति से राष्ट्र के निर्माण का जो एक प्रक्रिया है, वो हमारी स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन और आगे जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, ये लगातार सिस्टम के सिस्टम में जब हम काम करते हैं तो ये योगदान देने का अवसर हमें मिलता है। मैं कुछ विषमताएं या विसंगतियां, वो इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि आज आप स्कूल एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, 10th और हायर सेकेंडरी। आप जब कल के दिन मेन स्ट्रीम के नागरिक बनेंगे और अपनी व्यावसायिक जीवन के साथ आप जब इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे, आप कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, आप जुडिशरी में जाएंगे, आप इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में जाएंगे, बहुत सारे बच्चे अपने करियर के लिए अब्रॉड जाएंगे। तब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब मैं आज इस कुछ पल एंजल के टॉप के साथ जो मुझे विषय दिया गया है, युवा राष्ट्र निर्माण की थी, तभी सोचने का विषय होता है कि जो विद्यार्थी अपने कैरियर निर्माण के लिए राष्ट्र से इस शिक्षा यहाँ प्राप्त करके और राष्ट्र के निर्माण के चीजों के साथ, कैरियर निर्माण के साथ वो एक दूसरे देश में शिफ्ट कर जाता है। ऐसा क्यों? मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था तो मुझे पाया कि राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र जो वर्ड्स आया वो सबसे पहले पश्चिम से आया, और इसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 ईयर पहले। भारत का शब्द नहीं है राष्ट्र, नेशनलिज्म इंडिया का शब्द नहीं है, ये पश्चिम से आया हुआ शब्द है। और अभी जो कि मैं कभी प्रश्न कर दूं आपसे सीधा सीधा सा, कितने बच्चों के घर में न्यूज़पेपर आता है? हाथ खड़ा कर दें। गुड। कितने बच्चे पढ़ते हैं? ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस विषय पर आपको काम करना। मैं अभी नीचे जब बैठा था तो मैं रॉबिन सर से ये डिस्कशन कर रहा था, क्या हमारी एजुकेशन हमारे युवा पीढ़ी को क्या एक समृद्ध व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है, या उनको एक ह्यूमन रोबोट बना रही है? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर लेके आया हूँ, गाड़ी में ले गया। अगर आपने अंदर पढ़ा होगा तो उसमें कुछ डेटाज दिए गए। 17,000 स्कूलों में राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर एजुकेशन के लिए वो डेवलप किए थे कंप्यूटर लैब।
आज वो कबाड़ बन चुके हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज है ये। इसी बीच में हमारे कुछ युवा साथी नीचे दक्षिण भारत से निकलते हैं अपने कैरियर निर्माण के लिए, एक ड्रीम लेके, एक अपनी जी लेके छोटे से कस्बे में आते हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन पर काम करते हैं। और आज जब मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं तो मुझे इतनी बेहद खुशी होती है। तो ऑफिसर आप सबको जितना मैं अभिनंदन कर सकता हूं, आज क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर कितना यूथ जो है महुआ का यहाँ मेरे सामने बैठा हुआ है। हम लोग पढ़ते थे जब ये कल्पना से परे था। आप जोरदार क्लैपिंग कर सकते हो, आप अपने मैनेजमेंट कि वो सतत रूप से इस पूरे परिक्षेत्र के युवा के लिए, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उनके समृद्ध भविष्य के लिए लगातार चिंतनशील होते हैं और लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ ये विषमता है, इसलिए मैं कहता हूँ अखबार पढ़ना। आप 10 मिनट 15 मिनट न्यूज़पेपर्स पढ़िए, फ्रंट पेज पढ़िए, उसका व्यापारिक कॉलम पढ़िए, स्पोर्ट्स का कॉलम पढ़िए, साइंस राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पेज आप पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिन बच्चों को जी नीट और आगे जाके कंपटीशन देना है, सिविल सब स्टेज में जाना है, उनको न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। ये विसंगतियां मैं और आपको अगर डेटाबेस आपसे साझा करूं तो आप सरप्राइज करेंगे। और फिर यही कहूंगा कि हम जैसे कुछ लोग जो समाज के परिवर्तन या युवा पीढ़ी के लिए बेहतरी के लिए कुछ अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, वो इस परिक्षेत्र और परिक्षेत्र के बाद राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है। आप सब लोग उस प्रक्रिया के हिस्सेदार आप बनेंगे। मेरा आपसे सिर्फ अवसर पर इतना कहना है कि जो चर्चाएं मैंने की हैं आपसे, मैं अगर मेरे स्कूल टाइम की आपसे अगर बात करूं, यही बहुत सारे बच्चे आसपास के होंगे। खेड़ा बुजुर्ग का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है? आप हिंडौन जाएंगे महुआ से तो यहाँ से 15 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे अपने गांव में हुई। और हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो हमारे पास स्कूल में बैठने के लिए जो आजकल अपना फर्टिलाइजर का कट्टा नहीं आता खाद वाला, वो हम अपने साथ लेके जाते। क्लासरूम पटौल होती थी, टीचर होता था, हम अपना कट्टा खुद बिछाते, अपना एक बैग होता है इसमें हमारी बुक्स होती। उस दौर में 80 के दशक की जब मैं अपने स्कूल की बातें याद करता हूँ, आज मैं जब देखता हूँ, और मेरी बात की जो सेकेंडरी एजुकेशन है मेरी, वो महुआ में भी है। महुआ का आपका जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो बेहद खुशी होती है क्योंकि वो जो चीजें हमको जिन उपलब्ध नहीं हुई बदलते समय के साथ, वो आज यहाँ उपलब्ध कराने का प्रयास, एक बेहतरीन अवसर आप लोगों को मिल रहा है। आप जब हम लोग उन अभावों में निकल के और इतनी चीजें खड़ी कर सकते हैं, हम अपने योगदान को राज्य और राष्ट्र के निर्माण में और युवा पीढ़ी के बेहतरी के निर्माण में लगा सकते हैं, तो आपको तो आज इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। मेरा ये मानना है कि आपका राज्य और राष्ट्र के निर्माण में हमसे कई गुना योगदान होना चाहिए। विषमताओं के साथ आप अगर चीजों को नहीं देखेंगे और उन विषमताओं को कम करने के लिए आप अपना योगदान नहीं देंगे, तो हम एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकते। सब भी अपने 26 नवंबर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। आई थिंक आपके यहाँ प्रोग्राम आप करते होंगे। ऐसे ही डायलॉग मैंने अपने कॉलेज के बच्चों के साथ रखा था। संविधान की प्रिएम्बल्स को शायद उस वक्त आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, देखा आपने? हम प्रिएम्बल को अगर देखेंगे, हमारे संविधान की उद्देशिका को देखेंगे, तो उसको पढ़ के हम
मैं तो मेरा ही मानता हूँ कि एक सपने में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं, हम स्वर्ग में रह रहे हैं। उसकी जो टेबल्स के जो वर्ड्स हैं, मैं थोड़ा यहाँ पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज हम 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सी शुक्ला को ये हमारा अज्यूम किया गया था संविधान। हो सकता है आज मैं जो चर्चाएं कर रहा हूं आपसे उतना आप पे प्रभाव ना छोड़े, लेकिन ये तय मानिए जो बच्चे यहाँ से निकल के हायर एजुकेशन में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, पीजी जब करेंगे, तो शायद ये बातें जब कभी चर्चा चलेगी इस विषय पे, आपका चिंतन चलेगा या आप उस विषय पे अपना अध्ययन करोगे, तो आप निश्चित सोचोगे कि हमारे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में नीति निर्माण करने वाली जो व्यवस्था है, क्या वो वाकई में संविधान की प्रियम्बल के अकॉर्डिंग काम कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, चर्चा आपको कर रहा हूं, भारत का जो टोटल स्कूलिंग सिस्टम है 43% गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ता है और उसके अलावा जो शेष बचता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है। और हमारे कानून बना हुआ एजुकेशन टू राइट। और अगर सरकारी आंकड़ों की बात करूं मैं 2023-24 और अभी 16-17 से लेके अब तक हमारे जो विद्यार्थी प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते थे, आई थिंक 17 करोड़ 22-23 में, वो घट के 14 करोड़ 70 लाख हो गए। भारत का एक इतना युवा प्राइमरी एजुकेशन का शिक्षा से ड्रॉप कर रहा है, ये 1 साल का आंकड़ा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है राष्ट्र के निर्माण में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के निर्माण में। क्या आप कभी जब किसी पद पे बैठे होंगे और जब आपकी कलम चल रही होगी, क्या आप इन राज को, क्या उस अध्ययन को आप ध्यान में रखोगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है। व्यक्ति से राष्ट्र के निर्माण की हम जब बातें करते हैं तो ये सारी चीजों पे हमें गहन अध्ययन करना होगा, हमें समझना होगा हमारी भूमिका क्या हो सकती है उस दौर में जब हम वहां पहुंचेंगे। क्या हम उस पर एक ईमानदार व्यवस्था के रूप में अपना योगदान देंगे या वहां की परिस्थितियों के अनुरूप उस योगदान से हम पीछे हटेंगे। मैंने इसलिए आपसे ये चर्चा की अखबार पढ़ने की। आप अगर अखबार पढ़ेंगे निरंतर तो आपको ये जानकारी अपडेट होती रहेगी। अभी 1 महीने पहले हमारे राजस्थान सरकार के बहुत बड़े अधिकारी का, जो कि चीफ सेक्रेटरी के बाद दूसरे पद पर होता है, उसने ये कहा कि हमारा 70% समय ऑफिस का अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स में खत्म हो रहा है। अब आप समझ सकते हो, इस प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया अगर इस बात को कहता है कि उसका जो ऑफिस का कार्यकाल है, जो मीटिंग्स जो हो रही हैं, इसका मतलब हमारा जो सिस्टम जो इस राष्ट्र के राज्य के निर्माण में काम कर रहा है, वहां पर कितनी बड़ी विषमताएं पैदा हो रही है। और आप अध्ययन करके उसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। ये चुनौती आपके सामने भी है। तो बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ आज के टाइम तो बहुत बड़ा ड्रीम देखते हैं, अपने आप को एम्स में, IIT में और
सिविल सर्विसेज में ले जाना चाह रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, हमें ड्रीम देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए पूरे जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमें लगना चाहिए। जब तक वो ड्रीम हमारा पूरा नहीं हो जाता, चुनौती वहां स्टार्ट होती है। मेरा इसी विषय का आज की जो जानकारी और ये मेरे विचार मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं और आज के टॉक शो के लिए आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा और आपका आभारी रहूंगा। सिंपल वे में आप मेहनत करें, मेहनत का सिर्फ एक ही परिणाम है, सफलता। और मैं इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। हम इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, लाइट जल रही है, क्या ये किसी के साथ भेदभाव कर रही है? वो तो जल रही है, उसका काम जलना है, सबको उजाला दे रही है। अगर ये फैन चलेंगे तो ये सबके साथ हवा देंगे, सबको हवा मिलेगी। आप जिस फर्नीचर पे बैठे हो, क्या ये भी आपके साथ भेदभाव करता है? आप बैठ जाओ उठ के, आप चले जाओ, आप बैठ जाओ, ये कहेगा कि नहीं आप मत बैठो मेरे बीच। भारत के स्कूल का क्लासरूम सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, सबसे श्रेष्ठ मंदिर, जहाँ कोई ऊंच नीच, काला गोरा, कोई भेदभाव नहीं है। हम सब लोग एक साथ हैं। भारत का युवा यहाँ बैठा हुआ है, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये नॉलेज, ये जानकारी अगर आपने आत्मसात कर ली, जब आप एक नागरिक होने के नाते अपने दायित्वों के निर्वहन में जब आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जब आप जाएंगे, जब आप इस विचार के साथ वहां काम करेंगे, तो मेरा ये मानना है सच्चे अर्थों में आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे। बहुत सारी ऐसी विषमताएं हैं जिन पर ये समय नहीं है और आपकी जिस आज के टॉक शो के लिए वो आपके शांत हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, भारत की जो टोटल कैपिटल है उसका 89% हिस्सा 10% लोगों के पास, 89% पूंजी 10% लोगों के पास, और बाकी जो 11% पूंजी है वो 90 लोगों के पास। तब हमें सोचने को मजबूर होता है, जो प्रीमबल मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया। हम किस आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक समानता की बातें कर रहे हैं, हम किस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा, जो आप शुरू में मैंने बातें की कि आपके जीवन का निर्माण कैसे होता है और जीवन में कौन सी ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं। अगर आपका मनोविज्ञान आज ऐसे बना दिया गया है कि नहीं मुझे तो सिर्फ IAS, IPS या मुझे एक अच्छा इंजीनियर बन के सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं दोगे। आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ क्या करोगे, जिस प्रोजेक्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, व्यक्तिगत प्रॉफिट कैसे हो सकता है, ज्यादा कमीशन कैसे मिल सकता है, आप उस विषय पे काम करोगे। इस विषय पे नहीं करके कि जो काम हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। और ये जो काम, ये ब्रिज बन रहा है या ये बिल्डिंग बन रही है, ये 100 साल नहीं, ये हजारों सालों तक खड़ी रह के इस राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगी। इन विषमताओं के बीच में आज की युवा पीढ़ी और हमारे जैसे शिक्षक लोगों के सामने ये चिंतन का विषय है। मैंने अपनी बात को, कुछ विषमताओं को, व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण की संरचना में आपके योगदान को इस छोटी सी टॉक में मेरे को आपको डिस्कस करने का ये अवसर जो मिला है और आपसे डिस्कस मैंने किया है, तो मैंने बहुत प्रैक्टिकली, व्यावहारिक रूप से आपको समझाने का जो प्रयास किया है। और चलते चलते मैं आपको आपकी एनर्जीज का एक लास्ट आपको सुन देता हूँ, जो मैंने कहा कि ये एनर्जी का जो सबसे श्रेष्ठ उम्र का जो पायदान है वो 15 से और 25 और 30 तक होता है। आप जितने भी लोगों को देखोगे, वो अगर उन्होंने ऊंचाइयां छुई हैं किसी भी स्तर पर, किसी एज ग्रुप,
मैं इसको सिर्फ एक छोटी सी कहानी के रूप में आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि एनर्जी कैसे काम करती है। एक गांव में कंपटीशन चल रहा था। एक बहुत लंबा सा पोल लगा हुआ था 30-40 फीट का, और उस पर एक कंपटीशन था, भाई जो युवा इसके ऊपर चढ़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा उसके आसपास खड़े हुए थे। जैसे कोई युवा उस पर चढ़ने की कोशिश करता तो दूसरे लोग चिल्लाते, अरे गिर जाएगा, अरे तू फिसल जाएगा, अरे तेरा पैर टूट जाएगा। दूसरा कहता, अरे तू गिर जाएगा, तेरा हाथ टूट जाएगा। चौथा, तेरी मम्मी लड़ेगी, तू कहाँ चढ़ रहा है इस पे, तू चढ़ ही नहीं सकता, तू मैं बता रहा हूँ तेरे को। कुछ लोग और इससे आगे बढ़े, अरे तू चढ़ गया, तेरा पैर टूट गया तो तेरी शादी नहीं होगी। लंगड़े आदमी की कौन शादी करेगा? तो वो जो बच्चे प्रयास करते थे वो सब 10 फीट 15 फीट चढ़ते और नीचे आ जाते। अचानक एक युवा वहां उस गैदरिंग में आता है और वो तुरंत उस पोल पे चढ़ता है, और वो भीड़ वापस वही शब्द दोहराती है, अरे गिर जाएगा, अरे तेरा हाथ टूट जाएगा, तेरा पैर टूट जाएगा, तू ये कर देगा। वो युवा कुछ नहीं सुनता और वो फास्ट टॉप पे पहुंच जाता है। पीछे पीछे उस युवा का फादर आ रहा होता है। वो देखता है और सारे बच्चे, सारे लोग जो जम्मू में, वो ताली बजा रहा होता है, और कितना अच्छा कर दिया, ये चढ़ गया देखो, ये चढ़ गया, ये चढ़ गया देखो। हमें तो विश्वास ही नहीं था ये ऐसा कर सकता है। तो फादर भी खुश है, जबकि वो पहले गुस्सा हो रहा था कि उस दिन स्कूल नहीं गया था, तो उसको पनिशमेंट दे रहा था कि आप स्कूल नहीं गए, तो उसे पीटने के लिए वो भाग रहा था। वो बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए भागा। तो उसे वो भीड़ दिखी और भीड़ में देखा कि लोग इस पे चढ़ रहे हैं, तो भीड़ में छुपूंगा तो खोज लेंगे, फिर पीटेंगे, तो वो पोल पे चढ़ गए। चढ़ा कैसे? आपकी कहानी में यही एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। वो नीचे उतरा, तो उसके फादर ने बताया कि ये सुन नहीं सकता। शायद जितने बच्चे वहां चढ़ रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे, वो उस नेगेटिव एनर्जी को सुन रहे थे, तू गिर जाएगा, तेरा हाथ टूट जाएगा, तेरा पैर टूट जाएगा, तू गिर जाएगा, तेरी शादी नहीं होगी। और वो सब उस नेगेटिव एनर्जी के साथ अपनी मानस ऊर्जा को ग्रहण करते और नीचे आ जाते। बच्चों की वो सुन नहीं सकता था, वो जितने भी लोग चिल्ला रहे थे उसको उसने सुना ही नहीं और वो चढ़ गया। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके बारे में लोग कहते हैं, आप उन्हें अपने खान की तरह वो जो बंद कर लीजिए, उनको सुनना बंद कर दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आप सुनिए, तो आप अपने कितना ही बड़ा लक्ष्य हो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं सबके साथ में पुनः आप सबको शुभकामनाएं, और आज मुझे अवसर दिया इस विषय पे बोलने का, उसके लिए मेरे परिचय में जो कुछ बातें आप लोगों को बताई गई है, थोड़ा सा मैं उसमें ऐड और कर देता हूँ। मेरा ये मानना है, हम सब ग्रामीण इलाके में, आप जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर सब गांव से रहने वाले हैं। मोबाइल गाँव ही है, अजीनगर का बना है, तो हम इसको आप शहरी कस्बा कह सकते हैं, लेकिन हम सब, कोई व्यापार कर रहा है, दुकान कर रहा है, किसी का फादर किसान होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, सब हम अपना मेहनत कर रहे हैं, हमारे सब पेरेंट्स। और आज के आर्थिक सिस्टम में ये सबसे बड़ी चुनौती है, स्पेशली सामाजिक व्यवस्था में, हमारे बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है, क्या हम एज ए ह्यूमन, हमारा ये मानना है कि इक्वल, एक पेरेंट्स को अपने बेटा बेटी सबके साथ समान व्यवहार करना है। अभी भी देखने को ये मिलता है व्यावहारिक तौर पर कि बच्चों को कुछ प्रिविलेज, बॉयज को प्रिविलेज मिलते हैं और वो बेटियों को नहीं मिलते। आपका पहला राइट जितना बच्चे का राइट है, मैं आपको भी कहूँगा कि अगर ऐसी परिस्थिति अपने घर में आप बनती है, तो आप अपनी बहन के साथ खड़े होइए, अपनी दीदी के साथ आप खड़े होइए। वो पढ़ना चाहती है, वो आगे कुछ करना चाहती है,
पारिवारिक परिस्थितियां या हमारी सामाजिक हर्डल्स अगर उनको रोकते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो। और मैं डॉरी को इसलिए विशेष रूप से वैष्णव मैं देखता हूँ व्यावहारिक तौर पर कि उन पेरेंट्स के पास जब शादी होती है तो उसको मैं तो दहेज कहता हूँ, लोग उसको गिफ्ट कह देते हैं, देने के लिए लाखों रुपए होते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए उनके पास हजारों नहीं होते। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, अगर वो शिक्षित होगी तो वो अगर अपने आने वाली पीढ़ी के निर्माण में, अपने परिवार को सशक्त बनाने के निर्माण में, अगर हमारा परिवार सशक्त बनता है तो हमारा गांव सशक्त बनता है, गांव सशक्त बनता है तो हमारा जिला, हमारी तहसील, हमारा राज्य और उसी से फिर हमारा राष्ट्र सशक्त बनता है। तो मैं दहेज की शादियों में नहीं जाता हूँ स्पेशली। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि आप युवा जब आप इस स्ट्रीम में पहुंचे तो आप प्लीज अच्छे जीवन साथी का आप चुनाव करें, ये आपका राइट है। लेकिन गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, आप उसे मना करें। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को, मुझे दिया जा रहा था। एक होता है कि भाई ठीक है, पेरेंट्स अपनी बच्ची की शादी कर रहा है तो जितनी उसकी सामर्थ्य है वो उसको गिफ्ट दे रहा है। मुझे जो दिया जा रहा था मैं वो भी नहीं मैंने लिया, मतलब स्वीकार नहीं किया। जबकि एक सामाजिक ताने बाने की बात करें तो बुराई किस कदर हमारे ऊपर हावी है या उसको किस कदर मान्यता है, ये विषय आया मेरे सामने कि सब हमारे यहाँ ये परंपरा है, हम नहीं देंगे तो हम क्या कहते हैं उसको, हमारी नीची हो जाएगी, मतलब हमारी उल्टी बदनामी होगी, साहब इन्होंने दहेज नहीं दिया। ये बहुत बड़ा समस्या है समाज की, इसके लिए कानून भी बने हुए और हम देखते हैं जब ये आकाती वगैरह आती है तो सरकारी सिस्टम भी आता है, खड़ा होता है। आजकल तो हमारे जो विवाह के निमंत्रण छपते हैं उन पर भी लिखवाया जाता है कि इस एज से कम शादी नहीं होगी, सारी चीजें। आप कैसे योगदान दे सकते हैं इन चीज़ों में, स्पेशली क्योंकि मेरा टेस्ट है एजुकेशन, और एजुकेशन में जैसा बताया जा रहा था परिचय में, शिक्षा पंचायत मैं जब ये काम कर रहा हूँ तो मैं गांव-गांव में जाता हूँ, मेरी बेल्ट में ग्रुप के रूप में महिलाओं को, गांव के लोगों को मैं इकट्ठा करता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ उनसे बात करने का। जब वो बच्ची 10वीं की अच्छी पढ़ने वाली है, 12वीं की अच्छी पढ़ने वाली है, उसको रोक दिया जा रहा है, उसकी शादी करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू करवाने के लिए मैं अपना योगदान दूँ। तो शिक्षा पंचायत में इसी दौर में कि पहले हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ने का एक अवसर दिया जाए। अगर वो अवसर उनको मिलेगा, वो होनहार है, वो प्रतिभाशाली है, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अपने सपने होते हैं, एज ए पेरेंट्स, एज ए शिक्षक हमें उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। और वो सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे एक चीज नजर आई कि कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स के सामने मजबूरी होती है, परेशानी होती है आर्थिक रूप से। तो मैंने एक उस विचार को क्रियान्वित रूप दिया, उसको मैं है मेक फाउंडेशन, एक छोटा सा फाउंडेशन मैंने बना रखा है। मेरे प्रोफेसर सर है, प्रोफेसर पीएस वर्मा, जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप 10वीं 12वीं के बच्चे जिस बोर्ड से अपने एग्जाम देंगे उसके चेयरमैन रहे थे 2012 में। और एक प्रोफेसर आर के सर हैं जिनके अंडर में पीएचडी की, और डॉक्टर कैलाश जी हैं, हरियाणा यूनिवर्सिटी में हैं। वो हम लोग अपनी निश्चित सालाना जो हम लोग कमाते हैं उसका कुछ 5% 10% हम लोग योगदान देके हम एक फंड बना रखा है। और मेक फाउंडेशन स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन को प्रमोट करती है या उनको सहयोग देती है। तो सर मेरा निवेदन है आपके मैनेजमेंट से, मैम आपसे, अगर ऐसे कोई बेटी जो इकोनॉमिक रूप से पुअर हो, उसके पेरेंट्स और वो अपनी फीस देने में असमर्थ पाते हैं, तो मेक फाउंडेशन ऐसी बेटी को गोद लेने का काम करता है। तो हम उस मेक फाउंडेशन से आपके यहाँ एक बेटी की एजुकेशन को हम आपको निवेदन करते हैं। मैं यही कहूँगा कि तो अगर
ऐसी कोई बेटी होनहार है और उसके सामने परेशानी आ रही तो अपनी पढ़ाई ना छोड़े। वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। साली तो शायद बच्चों ने भी चाहिए बच्चे तो छीन लेते हैं, झगड़ लेते हैं अपने पापा से, मम्मी से जाके मुझे ये पैसा चाहिए। बेटियां नहीं झगड़ती। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं जब कॉलेज में होता हूँ ना तो आती है सामने परेशानी। आप सरप्राइज करोगे? सरप्राइज क्यों करोगे बेटा? मैं अगर फीस के अंतराल को आपसे डिस्कस करूंगा ना, इसलिए सरप्राइज करोगे आप। उनको भी उसको पे करने में परेशानी है। तो ये लगातार चिंतन चलता है, तो ये चीजें वहां से निकलती है। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके अच्छे सकारात्मक विचारों के लिए आप आगे बढ़े, जुनूनी बने, अपना लक्ष्य तय करें और वह पहुंचे। और वह पहुंच के कैसे इस राष्ट्र के व्यक्तित्व के साथ, निर्माण के साथ आप राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, तभी हमें आज का ये आपका एंजल्स टॉक सार्थक होगी। पुनः सबका धन्यवाद। How to keep and positivity in ourselves to for overcoming the our life's lowest point. आपके सोच के साथ में आप कैसा अध्ययन करते हो, कैसे जो आपका सराउंडिंग है, किन लोगों के साथ आप बैठते हो, कैसे लोगों के साथ आपका डायलॉग है, आप कैसा साहित्य, कैसी किताबें आप पढ़ते हो, ये उनसे कंसर्न है। आप हमेशा ऐसा साहित्य पढ़ें जो सकारात्मक है। इसके लिए अगर आप गौर से देखें, जैसे मैंने कहा ना, मैंने शुरू में अखबार कितने करूंगा, भास्कर जो आपका न्यूज़पेपर आता है ना, वो एक चला रहा है, नो नेगेटिव मंडे। अगर आप भास्कर को पढ़ोगे तो सोमवार के दिन भास्कर में कोई नकारात्मक खबर नहीं आएगी। जितनी भी खबरें हैं, खबरें तो बहुत होती है, लेकिन उसने तय कर रखा है कि सोमवार के दिन हमारा जो पब्लिकेशन होगा उसमें सारी पॉलिटिक्स, तो जितनी स्टोरियां हैं भारत से लेके और बाहर तक की, जो साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर्स हुए, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, आपके एस्ट्रोनॉट, अभी सुनीता विलियम्स का आर्टिकल आया है परसों के दिन, आप उसे पढ़ेंगे, वो उनके साथ जाएंगे। बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बाई द वे, आपको बहुत सारे नकारात्मक विचार आप जब आपको घेरते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, गो टू मेडिटेशन। मैं तो ये सभी को कहूँगा, आप लगातार जब पढ़ रहे होते हैं, घर पे भी 2 या 3 घंटे आप पढ़ते हैं, या क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 मिनट शांत हो जाना है, आंखें बंद करो और उस प्रयास करो, उसमें थॉट लेस होना है। क्या होना है? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने जो आपको 4 एनर्जीज की बात की ना, वो इसीलिए कि सोचो, बस आप इतना सोचो, फिर दिखाओ, आपकी एनर्जी वापस रिक्रिएट होती है। ये विज्ञान है हमारा, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं ना, वो एक तरीके का साइंस है। ये है कि आजकल जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो वैनिश होती जा रही है, मतलब आजकल लोग उसे ज्यादा बोलते नहीं है, तो आप क्या एडवाइस दोगे, हम उसे कैसे प्रिजर्व करें? इशू है, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, राजस्थान को अगर आप देखोगे ज्योग्राफिकल और कल्चरल उसमें, तो जो आपका बीकानेर वाला बेल्ट है, मतलब उत्तरी राजस्थान, और आपका पश्चिमी राजस्थान, जिसमें आपका जोधपुर, पाली और ये आपका बेल्ट, जो मारवाड़ी भाषा है वो आपके 8-10 जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में आज की डेट में 41 जिले हैं, ठीक है। 8 जिलों की भाषा को अगर पूरा प्रदेश स्वीकार कर रहा है, प्रदेश के और कोने कोने में कौन सी भाषाएं बोली जा रही है, तो ये कई तरीके की विषमताएं हैं। आप और मियाँ जो भाषा बोलते हैं उसको अपन ब्रज भाषा या खड़ी भाषा बोलते हैं, आपको मारवाड़ी नहीं आती। अगर मारवाड़ी को मान लो ऑफिशियली भाषा डिमांड भी होती है कई बार, इस बात का राज्य की विधानसभा से लेकर लोकसभा तक डिमांड भी होती है, तो ये विषमताएं उसमें आ रही है। ये चुनौती आपके हम सबके सामने है। हाँ, लेकिन कई बार लैंग्वेज हमको एकजुट कराती है, हमें जोड़ने का काम करती है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि मारवाड़ी को जो ऑफिशियली डिमांड जो चल रही है वो, क्योंकि राजनीतिक विषय है, इसमें आपका हमारा कोई योगदान नहीं, ये स्वीकार होगी या नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपकी रुचि है
बहुत अच्छी लगती है मुझे। अब मैं उसका एक सेंटेंस आपको बता देता हूँ। जैसे अपने यहाँ खड़ी भाषा में अपन क्या बोलेंगे, मैं बिल्कुल गाँव की भाषा में बोल रहा हूँ तो दिक्कत थोड़ी है ना सर। हम किसी पे गुस्से होता है तो हम क्या कहते हैं, तेरे सर पे जूते मारूंगा, हैं? और पता है मारवाड़ी में क्या बोलते हैं उसको? थाके माथे मारे पग रखी, तुम्हारे सर पे मेरा। लेकिन उसमें भी मिठास है। आप सुन, जो बोलने का मिठास है, थाके माथे मारी पग रखी, तुम्हारे सर पर मेरे पैर में जो जूती है वो मैं रख दूंगी। ये लैंग्वेज का अपना अलग अलग वो होता है। जबकि हमारी खड़ी जो भाषा है वो एक ऐसा लगता है कि सामान्य तौर पे भी हम बोलते, कई बार ये परेशानी होती है। यहाँ भी आपके यहाँ होती है नहीं होती है एक्चुअल में। मेरे यहाँ कई बार टीचर्स जो बाहर के होते हैं और बच्चे जब वो भाषा बोलते हैं ना तो वो शिकायत करते हैं, सर बहुत बदतमीज बच्चे हैं। हमारी भाषा, खड़ी बोली भाषा वो वैसी है। तो हर कोई कर देता है कि आज से मैंने ये सोचा है अब मैं बनूंगी और बन के रहूंगी, बट एंडिंग कोई कर नहीं पाता। बहुत कम लोग करते हैं जो आगे जाके सक्सेसफुल होता है। आधे से ज्यादा लोग बीच में गिव अप कर देते हैं कि भाई नहीं हो रहा मेरे से, भाई नहीं होगा। तो लाइक ये जुनून अपने अंदर कैसे लाए कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने ठाना है वो मैं करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहली बात तो ये बेटा, जो आपने जो सोच रखा है, आप जो करना चाहते हो ना, वो आप करके रहोगे। और आपके उस करने, सोचने और करने की प्रक्रिया में आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं तो दूसरे लोगों को आपको ध्यान ही नहीं देना है, इग्नोर करो। आपके पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे बड़ा है जीवन में। अगर हमने पेरेंट्स को अपने साथ ले लिया या उनको सहमत कर लिया, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। सर पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो पेरेंट्स आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि भाई मतलब कि लाइक मेरी बेटी का फिर मेरे बेटे का हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता कि लाइक ऊपर से लोड आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो एक चीज को आप समझने की कोशिश करो। मैं इसका एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही दे देता हूँ। मैं जयपुर पढ़ने गया और ग्रेजुएशन पीजी किया मैंने, और मेरी बैंक में नौकरी है जयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर। मेरे घर वाले खुश थे। घर वाले सिर्फ इतना से चाहते कि आप पढ़ने में अच्छे हो, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। और चूंकि पॉलिटिकल स्थिति ऐसी थी कि सिफारिश की जरूरत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्यों हुई कि मैं पढ़ने में ठीक था, औसत विद्यार्थी था, तो कोई ठीक है एक अफसर बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब एसडीएम और कलेक्टर आते हैं तो उनका अलग ड्रॉप डाउन होता है। अगर वो यहाँ आता आपसे बात करने तो उसको स्कूल का पूरा अनुशासन रिकॉर्ड में गलत होता है। मेरी रुचि नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने अपनी बैंक की सर्विस को रिजाइन कर दी और मैं 1 साल बैठा इसलिए रहा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कह रहे थे कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करनी है, आपको सर्विसेज में जाना है। मेरी रुचि थी, मुझे एजुकेशन में जाना। एजुकेशन कहाँ? गाँव में। अभी आप पढ़ लिख जाओगे ना, अच्छे अफसर बन जाओगे, आप सिटी में चले जाओगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ लोगे, आप में से एक विद्यार्थी नहीं सोचेगा इस विषय को कि गाँव में जाकर मुझे काम करना है। इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं थैंक्स टू रॉबिन और ज़ुबैर जितने यहाँ लोग बैठे हुए, वहां से चल के महुआ के छोटे से कस्बे में जब आए थे तब तो बिल्कुल गांव था महुआ, क्वालिटी एजुकेशन पे काम किया। ये होता है, ऐसे लोगों की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो हमें अपनी सक्सेस को पर्टिकुलर चीजों में नहीं मानना चाहिए। आप अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, कोई डाउट मत करो अपनी क्षमताओं पर। आप ये सोचिए सिर्फ कि मैंने अपना 100% दिया, रिजल्ट देने वाला वो है। अगर उसने नहीं दिया तो कोई नहीं, आप तो और बहुत सारी क्षमताएं हैं, आप उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, अपने आप को, अपने जीवन को, इस समाज को और बेहतर योगदान आप दे सकते हो। आप ये सोचिए। इसलिए हम अपनी क्षमताओं को और अपनी मेहनत को सिर्फ एक बिंदु पे जाके ना रोकें कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं निराश हो गया। और ये आज के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। आपने जो कहा कि ये प्रॉब्लम भी है कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे आईआईटी में ही जाना है। क्यों जाना है भाई आईआईटी में? आईआईटी में चले जाओ, एनआईटी में चले जाओ, आपको करना तो बीटेक ही है ना। अब आपको जानकारी नहीं है, आईआईटी का जो प्लेसमेंट है वो मात्र 5% है, तो आईआईटी में पढ़ने वाला 95% स्टूडेंट क्या कर रहा है?
और ट्रिपल आईटी और एनआईटी की अगर बात करेंगे तो उनका प्लेसमेंट जो है 25% है। अगर मैं जॉब के एंगल से अगर देखूं हमारे इंस्टीट्यूशंस को, तो मैं फिर एनआईटी और ट्रिपल आईटी को ज्यादा अच्छा मानूंगा कि वो पढ़ने वाले बच्चों को जॉब के अवसर ज्यादा मिल रहे हैं। इसलिए अपने आप ही टास्क ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन कर लो, और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप ये सोचिए कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है, रिजल्ट देने वाला कोई और बैठा है। नेक्स्ट चांस, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। Thank you kids, thank you for a wonderful session, and we have 2 more sessions there. One I think today, maybe it's possible. Otherwise tomorrow we are going to interact with other local boy of Mawa regarding the business and startup things. Okay? Thank you very much.